Assalamu alaikum and welcome to lecture 29. Our topic is investment analysis and portfolio management. Let's have a look at outline. First we will discuss recap of the previous lecture. Then we will continue from the systematic and unsystematic risk which we have started in our previous lecture. Then we will discuss different for CAPM formula. As you know, we are in the process of studying CAPM. Then we will discuss uses of CAPM and then limitations of CAPM, and then to apply the adjusted present value approach to decision making. In respect of the recap, you know we have started CAPM after completion of portfolio theory. And in CAPM, the main and the major element is the beta, which we have started and discussed in our previous lecture, in which we studied that beta is the measurement of systematic risk. Unsystematic risk is not considered in CAPM, and the only element of risk which we considered in CAPM is the systematic risk. And the logic is behind this assumption is that unsystematic risk is eliminated through diversification. So investors have to tackle only systematic risk, which is focused in CAPM. So systematic risk is measured by a beta factor, therefore the required return from an investment must be related to the beta factor of that investment. This is brought together in the capital asset pricing model, which is a formula that relates required returns to beta factors or measures of the systematic risk. When market shows a bullish trend, goes up, यानी आप जब स्टॉक चेंज की न्यूज़ सुनते होंगे, स्टॉक चेंज को विजिट करते होंगे, तो आप देखते होंगे वहाँ पे टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं, बुलिश ट्रेंड एंड बियरिश ट्रेंड. तो इसका क्या मतलब होता है और ये किस तरह आप कैपम में इसको यूज करते हैं? जब बुलिश ट्रेंड यूज होता है इट मींस गोज अप, वी शुड, और जब बुलिश ट्रेंड आ रहा होता है तो इट मींस कि इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज विद बीटा इज ग्रेटर देन 1 so that market rises by 1% may earn more than 1%. क्योंकि ये वाली लिंक हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे. when beta is greater than 1 तो आपकी सिक्योरिटी जो होगी उसका रिटर्न मूव करेगा इन अकॉर्डेंस विद द मार्केट रिटर्न. अगर मार्केट रिटर्न इंक्रीज हो रहे हैं 10% से, तो आपके जो सिक्योरिटी के रिटर्न्स होंगे वो भी इंक्रीज होंगे विद द ट्रेंड ऑफ मार्केट. और जब मार्केट गोज डाउन, व्हेन मार्केट गोज डाउन, दिस इज अ बेयरिश ट्रेंड, वी शुड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज विद बीटा लेस देन 1. So that market falls by 1%, we may lose less than 1%. तो ये bearish और bullish trends होते हैं जिनको स्टॉक एक्सचेंज में आप कंटिन्यूअसली देखते रहते होंगे, और इनका मीनिंग क्या होता है ये हमने देख लिया, और इससे आपको इन्वेस्टर को क्या आइडेंटिफाई करने वो भी हमने देख लिया कि कब वो इन्वेस्ट करेगा, किस तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा. For risk-free securities, sigma equal to 0. Sigma क्या था? Standard deviation which is used in the portfolio theory. वहाँ पे उसके हमने calculations और measurement देख ली थी. तो standard deviation is represented by sigma, which is 0 for risk-free securities. Because in risk-free securities there is no risk. So sigma, standard deviation और risk is 0. और beta जो कि हम कैपम में यूज करते हैं, और बीटा रिप्रेजेंट करता है सिस्टमैटिक रिस्क को, वो भी 0 होता है फॉर रिस्क फ्री सिक्योरिटी. एंड आर ए इक्वल टू आर एफ, यानी रिटर्न कितना होगा? इक्वल टू
risk free rate of return. So correlation between the security and the market equal to 0. For securities with risk equal to market risk, तो उसमें क्या होता है, बीटा इक्वल टू 1, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. और इसका सिस्टम जो स्टैंडर्ड एविएशन है, दैट रिलेट्स टू सिस्टमैटिक रिस्क इक्वल टू सिग्मा ऑफ द मार्केट एंड आर ए इक्वल टू आर एम. तो दीज आर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स के ये आपको ज़हन में रखने होंगे व्हेन यू आर uses the concept of CAPM. For securities with beta greater than 1, जो आपका सिग्मा होगा that relate to systematic risk is greater than sigma of the market, यानी risk of the market से वो greater होगा. And return on security is greater than the return on the market. तो ये उन securities के लिए जिनका beta is greater than 1. और फॉर सिक्योरिटीज बीटा लेस देन 1, वहां पे रिस्क ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क इज लेस देन द मार्केट रिस्क एंड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी इज लेस देन द मार्केट रिटर्न. तो ये वो सिंपल फिनोमिनाज हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे उसको एक प्रेजेंट किया है इन अ स्लाइड, ताकि आपको रिमाइंड भी हो जाए और आपको याद भी हो जाए कि जब बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो उसका क्या मतलब है और जब लेस देन 1 होगा तो उसका क्या मतलब है, और ये आप लिंक कर सकेंगे आराम से इन योर सिनेरियोज. नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट कैपम. तो कैपम का फार्मूला किस तरह हम प्रेजेंट करते हैं कि इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. तो उसके लिए हमने ये प्रेजेंट किया फार्मूला जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि R इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय रिस्क प्रीमियम, मार्केट प्रीमियम. मार्केट प्रीमियम क्या था, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो कि इस एलिमेंट में शो हो रहा है. और बीटा पे हम डिस्कशन कर चुके हैं कि बीटा की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, मेजर किस तरह करते हैं और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है. और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको मालूम है कि नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे होते हैं और वो रिस्क फ्री रेट कहलाते हैं, रिस्क फ्री एसेट और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहलाते हैं. तो यहाँ पे हमने उसकी टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन भी कर दिया कि ये किन चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं. दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू द फॉर्मूला फॉर द कैपिटल मार्केट लाइन. इट इज इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू लर्न इट. The expected return from an individual security will therefore vary up or down as the return on the market as a whole goes up or down. The size of the increase or fall in the expected return will depend on the number 1, the size of the change in the returns from the market as a whole, and the beta factor of the individual security. तो जब आपका मार्केट ट्रेंड हाई हो रहा होगा या लो हो रहा होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा आपकी सिक्योरिटी पे, वो लिंक होगा विद द साइज ऑफ द चेंज के मार्केट के रिटर्न्स में कितना चेंज आया है. एंड सेकेंडली आपका बीटा फैक्टर कितना था, क्योंकि बीटा फैक्टर की कैलकुलेशन और मेजरमेंट में हमने देखा था इट इज द कोवेरियंस बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द मार्केट डिवाइडेड बाय द वेरियंस ऑफ द मार्केट. तो बीटा फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितना इफेक्ट आएगा सिक्योरिटी पे. इसके एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए. द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 4%, दैट इज RF. हम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को किस तरह मेंशन करेंगे, RF, या फिर स्मॉल f में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं. एंड द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 8.5%, which is described as RM or caps RM. What is the expected return from shares in companies X and Y? आपको अभी expected returns कैलकुलेट करने हैं. आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है. अगर बीटा फैक्टर फॉर कंपनी X is 1.25 and the beta factor for company Y shares is 0.90.
तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न थ्रू कैपम फार्मूला क्या होंगे वो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कैपम फार्मूला है R इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो आपने रेस्पेक्टिव जगहों पे अपनी फिगर्स को पुट किया तो आपके पास रिजल्ट आया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द केस ऑफ सिक्योरिटी एक्स इज 9.625% and then in the case of security Y your required return is 8.05%. तो it means कि security X का जो return है that is greater than your security Y return. एक और illustration इसमें देख लेते हैं। The following information is available. इसमें सबसे पहले risk free rate of return दिया हुआ है that will be represented by, आपको याद होगा, RF and expected market return that is represented by RM. Standard deviation of market return, standard deviation को आप सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं और मार्केट का कितने 1.4%. Standard deviation of return from shares in company ABC is 2.5%. तो जो आपकी सिक्योरिटी है उसका सिग्मा S कितने 2.5%. उनका कोरिलेशन कोफिशिएंट for returns from shares in company ABC and returns from the market as a whole is 0.90. तो आपका correlation coefficient कितना है of security and market is 0.90. तो इसमें आपने क्या कैलकुलेट करना है? First you have to calculate the beta factor for company ABC shares and then estimate the returns currently expected from company ABC shares. तो सबसे पहले आप बीटा कैलकुलेट करेंगे। बीटा आपको मालूम था, फार्मूला आपसे डिस्कस हुआ है, उस फार्मूले में आप रिवाइज करके उसको में फिगर्स पुट करेंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट बीटा एंड देन यू कैन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो आप बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। तो ये इसका सोल्यूशन देखते हैं कि आपने 0.90 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 1.4 जो कि हमने अभी डिस्कस किया है और आपका रिजल्ट आता है बीटा ऑफ एबीसी शेयर्स इज 1.607. इट मींस इट इज ग्रेटर देन द मार्केट रिटर्न, मार्केट बीटा। और एक्सपेक्टेड रिटर्न किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो कि फॉर्मूला हम काफी दफा ऊपर देख चुके हैं, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। इसको इस तरह भी प्रेजेंट करेंगे, कर सकते हैं आप। तो इसमें फिगर्स पुट किए तो आपके पास आया 9.6245%। तो इट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न शेयर्स इन कंपनी एबीसी। नाउ द बीटा फैक्टर ऑफ ए स्मॉल पोर्टफोलियो। A portfolio of investment containing just a few securities will not be fully representative of the market portfolio. क्योंकि छोटे जो पोर्टफोलियो है वो पूरी मार्केट को प्रेजेंट नहीं कर रहा होता। Its systematic risk will therefore be different from the systematic risk for the market as a whole. Obviously जब एक छोटा पोर्टफोलियो है उसमें मार्केट की तमाम सिक्योरिटीज मौजूद नहीं है तो उसका सिस्टमैटिक रिस्क will be different from the systematic risk of the market. The relationship between the systematic risk of a small portfolio and the systematic risk of the market as a whole can be measured as a beta factor for the portfolio. The relationship between the returns of the small portfolio and the market के साथ निकालेंगे, बीटा के थ्रू निकालेंगे और बीटा के थ्रू उसको प्रेजेंट करेंगे। A beta factor for a portfolio is the weighted average value of the beta factors of all the individual securities in the portfolio. क्योंकि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 5 सिक्योरिटीज मौजूद हैं और उनका बीटा आपको मेंशन है तो आप जो पोर्टफोलियो का बीटा निकालेंगे वो उनकी वेट्स के मुताबिक निकालेंगे। यानी अगर हर सिक्योरिटी 20% प्रेजेंट कर रही है ऑफ ए टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू तो फिर आप बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे विद द रेस्पेक्टिव वेटेजेस और आपके पास टोटल बीटा आ जाएगा पोर्टफोलियो का।
द वेटिंग अलाउज द relative proportions for each security in the portfolio. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके एग्जांपल यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए. A portfolio contains 5 securities. The proportions for each security in the portfolio and the beta factor of each security are as follows. आपको बीटा फैक्टर बताया गया है हर सिक्योरिटी का और उसकी परसेंटेज बताया गया है कि कितना परसेंट है ऑफ टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू. तो 10%, 25%, 15%, 30%, 20% ये टोटल वेटेज प्रेजेंट कर रहे हैं इन द होल पोर्टफोलियो. तो आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे पोर्टफोलियो का बीटा कि आप प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे विद द रिस्पेक्टिव बीटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसका समेशन शो करेगा बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो. आइए उसका रिजल्ट देखते हैं कि आपने प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई किया विद रिस्पेक्टिव बीटा तो आपके पास हर सिक्योरिटी का बीटा वेट के लिहाज से आ गया, उनको सम अप किया तो आपके पास पोर्टफोलियो ऑफ द बीटा आ गया, डेट इज 1.046. तो इस तरह पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट किया जाता है. The required return of an investment with a beta of 0 risk-free will be risk-free return. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. The required return of an investment with a beta of 1 will be the market return. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे रिवाइज करने का पर्पस ये है कि ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाए और याद हो जाए. Consider investment A. It appears to be earning a higher return than the CAPM would predict given its beta. It is therefore temporarily underpriced. इसका क्या मतलब है कि अगर एक कंपनी है A और वो रिटर्न अर्न कर रही है डेट इज ग्रेटर देन द कैपम, तो जब वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा अर्न कर रही है तो इट मींस इट इज अंडर प्राइस्ड. इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नोट कि इट इज टेम्परेली अंडर प्राइस्ड. और वो क्यों अंडर प्राइस है? क्योंकि आपको याद होगा कि जो आप मार्केट वैल्यू निकालते हैं उसमें क्या करते हैं कि कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और जब आपका रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द कैपम तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर का फैक्टर जो है वो ज्यादा है, तो वो अंडर प्राइस हो जाएगी. इसी तरह कंसीडर इन्वेस्टमेंट बी. इट अपीयर्स टू बी अर्निंग अ लोअर रिटर्न देन द कैपम एंड इट्स बीटा वुड प्रिडिक्ट एंड देयरफॉर would appear to be temporarily overpriced. और जिस कंपनी का एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन द कैपम तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? टेम्परेली ओवरप्राइस्ड. तो इससे कैपम के थ्रू आप कंपनीज की प्राइसिंग भी चेक कर सकते हैं कि जो उनकी करंट मार्केट वैल्यू है इन रिलेशन टू द जो उनके एक्चुअल रिटर्न्स हैं उसके मुताबिक वो अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस्ड है. In the long run, market forces should ensure that all investments do give the returns predicted by capita or security market line. तो जो कंपनी अंडर प्राइस है वो विन द लॉन्गर टर्म, क्योंकि मार्केट फिनोमिना डिमांड और सप्लाई का जब अप्लाई होगा, जब अंडर प्राइस होगी तो शेयर्स उसमें सेल होना शुरू होंगे और उसकी डिमांड फिर इंक्रीज होना शुरू होगी. जब अंडर प्राइस होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी क्योंकि लोग उसको खरीदना शुरू करेंगे और लॉन्गर टर्म में उसकी प्राइस फिर इंक्रीज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी. तो कैपम के थ्रू आप प्राइसिंग चेक कर सकते हैं दैट ए कंपनी इज करंटली ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड. तो कैपम का एक ये यूज है. अभी यूजेस ऑफ कैपम में और क्या है? वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर. इफ एन इन्वेस्टर ऑलरेडी होल्ड्स अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देन द इन्वेस्टर विल बी कंसर्न्ड ओनली विद द सिस्टमैटिक रिस्क. क्योंकि हम ये अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में सिस्टमैटिक रिस्क एलिमिनेट हो जाता है. तो जब से उसका अनसिस्टमैटिक रिस्क एलिमिनेट हो गया तो उसका ओनली कंसर्न क्या होगा? in respect of systematic risk. The CAPM is therefore relevant. क्योंकि CAPM
deals with only systematic risk. The investor will be concerned only if a potential investment gives a high enough return given its sensitivity to market risk as measured by its beta factor. तो वो कैसी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा? वो उन इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा जो कि उसे रिटर्न देंगी मोर देन द मार्केट रिटर्न, और उनका बीटा क्या होगा? बीटा फैक्टर से वो कैलकुलेट करेगा। और कंपनीज के लिए क्या है? कंपनीज शुड नॉट डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटीज सिंपली टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ देयर शेयर होल्डर्स, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोटेड कंपनीज के केसेस में शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और जो कंपनीज हैं वो शेयर होल्डर्स के लिए रिस्क को इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे। शेयर होल्डर्स कैन डाइवर्सिफाई देयर शेयर होल्डिंग मच मोर इजली देन अ कंपनी कैन इट्स एक्टिविटीज, क्योंकि कंपनीज मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जाते हुए डरेंगी, क्योंकि एक कंपनी अगर एक सेक्टर में स्पेशलाइज है तो दूसरे सेक्टर में जाना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उसे नई बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट, बहुत मेजर रिस्क फेस करने होंगे। तो वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेगी, अपनी एक्टिविटीज को चेंज नहीं करेगी, लेकिन शेयर होल्डर आराम से अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकता है, क्योंकि वो अगर एक कंपनी का उसने शेयर लिया हुआ है तो वो बी कंपनी में भी कुछ शेयर्स उठा के अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर लेगा। इफ शेयर होल्डर्स आर वेल डाइवर्सिफाइड देन द कंपनी should concern itself on behalf of the shareholders simply with the systematic risk of potential investments or projects. Therefore, the aim of the company with well diversified shareholders should be to determine the required return from its investment projects using the CAPM and then compare this to the expected return. तो कंपनीज का भी कंसर्न क्या हो जाता है? दैट इज ओनली विद द सिस्टमैटिक रिस्क, उसके लिए वो यूज करेंगे कैपम को। इफ द प्रोजेक्ट इज द सेम रिस्क एज दैट ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी देन द एग्जिस्टिंग वैक कैन बी यूज्ड। ये हम वैक में भी डिस्कस कर चुके थे कि कंपनी का बिजनेस रिस्क सेम है। फाइनेंशियल रिस्क को एक दफा हम इग्नोर कर दें तो दूसरा रिस्क क्या था? बिजनेस रिस्क। तो अगर बिजनेस रिस्क कंपनी का सेम है तो करंट वैक वो यूज कर सकते हैं। However, if the project is of a different risk type to the existing activities, then the existing WACC will not be appropriate. क्योंकि ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी ऑपरेट कर रही है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रही है, तो वो करंट वैक यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वहां के बिजनेस रिस्क विल बी डिफरेंट फ्रॉम द टेलीकॉम सेक्टर। In these instances, a tailor-made discount rate for that type of project must be determined using the CAPM. तो हम जो रिस्क एडजस्टेड वैक की बात कर रहे थे उसके लिए भी आपको कैपम पे आना होगा। कैपम के थ्रू आप रिस्क एडजस्टेड वैक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जहां पे अभी हमने बात की डिस्काउंट रेट की, वैक की और बिजनेस रिस्क चेंज होने की, तो वहां पे कॉन्सेप्ट निकलते हैं एसेट बीटा का, कि एसेट बीटा। अब एसेट बीटा क्या होता है? एनी कंपनी इज मेड अप ऑफ इट्स एसेट्स और एक्टिविटीज। क्योंकि एक कंपनी में जो प्रेजेंट कर रही होती है उस कंपनी की एक्टिविटीज को, वो उसके एसेट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो उसका प्लांट उसकी एक्टिविटीज को, उसकी कंपनीज के रिस्क को प्रेजेंट कर रहा होता है कि उसकी मशीनरी कैसी है, उसके प्लांट्स कैसे हैं। These assets will have a certain amount of risk depending upon their nature. These assets will have a beta factor that recognizes the sensitivity of such assets to systematic risk. क्योंकि उसके प्लांट डिटरमिन करेंगे कि इसका बिजनेस रिस्क क्या है, क्योंकि बिजनेस इज अ ब्रॉड टर्मिनोलॉजी that can be affected by regulators, that can be affected by political environment, regulatory environment और मार्केट फैक्टर्स, और साथ साथ कंपनी के अपने इंटरनल फैक्टर्स कि कंपनी के प्लांट्स कैसे हैं, उसके ऑपरेशंस कैसे हैं। तो हर कंपनी का एक एसेट बीटा होता है जो कि प्रेजेंट कर रहा होता है उसका सिस्टमैटिक रिस्क को।
This beta factor is the asset beta and measures the systematic business risk of the company. तो इस बीटा फैक्टर जो कि एसेट्स की वजह से राइज हो रहा है उसको हम एसेट बीटा बोलते हैं और इट मेजर्स द सिस्टमैटिक बिजनेस रिस्क ऑफ द कंपनी. एसेट बीटा मेजर्स द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द कंपनी. जो हम सिस्टमैटिक की बात कर रहे थे वो एसेट बीटा के थ्रू कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि एक कंपनी अगर, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर टेलीकॉम सेक्टर में ऑपरेट कर रही है और बैंकिंग सेक्टर में जा रही है तो उसके बिजनेस रिस्क टोटली चेंज हो जाएंगे. उस बिजनेस रिस्क को, और वो करंट वैक यूज नहीं कर सकते. जब वो करंट वैक यूज नहीं कर सकते तो आपको अपने वैक को एडजस्ट करना होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर के जहां पे वो नई इन्वेस्टमेंट करने जा रही है कंपनी. तो उसके लिए एसेट बीटा इज द रेलेवेंट बीटा और एसेट बीटा कैलकुलेट करेगा सिस्टमैटिक बिजनेस रिस्क ऑफ द कंपनी. तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट in respect of your understanding कि this beta factor is the asset beta and measures the systematic business risk of the company. कि जब भी कंपनी के बिजनेस रिस्क चेंज होगा और अगर वैक के थ्रू उसको एवेल्युएशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एसेट बीटा कैलकुलेट करना होगा. एसेट बीटा की बेस पे आपको अपने वैक को एडजस्ट करना होगा. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय गियरिंग. यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम वैक डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने दो रिस्क की बात की थी. नंबर 1 बिजनेस रिस्क, दूसरा फाइनेंशियल रिस्क. अगर ये दोनों चेंज नहीं होते तो करंट वैक यूज कर सकते हैं. अगर इन दोनों में से कोई इफेक्ट होता है तो करंट वैक आप यूज नहीं कर सकते. तो अभी हमने टैकल करने की बात की एक चीज को, बिजनेस रिस्क को. तो इट इज एसेट बीटा इज नॉट अफेक्टेड बाय गियरिंग. एक एग्जांपल देख लेते हैं. एन इन्वेस्टमेंट हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ओवर द नेक्स्ट ईयर ऑफ 12%. एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना बताया गया? 12%. द बीटा ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज एस्टिमेटेड एट 0.9. द रिस्क फ्री रेट आरएफ है उसका 5% और मार्केट रिटर्न है 15%. शुड आर वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन दिस इन्वेस्टमेंट. जो हम यूजेस ऑफ कैपा में ऊपर डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड ये एग्जांपल है कि शुड दैट वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन दिस इन्वेस्टमेंट. उसके लिए क्या है? रिक्वायर्ड रिटर्न, जो कैपम का फॉर्मूला है वो पुट किया तो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना निकला थ्रू कैपम? 14%. और इस पे जो गिवन था एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट इज 12%. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस देन द रिक्वायर्ड रिटर्न, देयरफॉर द इन्वेस्टर शुड नॉट इन्वेस्ट. तो कैपम में आप ये कैपम का जो यूज है वो आप एवेलुएट करने के लिए भी कर सकते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी, एक जो इन्वेस्टमेंट ऑप्ट कर रही है कंपनी या इन्वेस्टर, वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. उस करेंगे जब एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी मोर देन द रिक्वायर्ड रिटर्न. तो इस सिनेरियो में आपने देखा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस देन द रिक्वायर्ड रिटर्न, तो इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट में. अभी हमने एसेट बीटा की बात की थी, इक्विटी बीटा की बात कर लेते हैं. द इक्विटी बीटा मेजर्स द सेंसिटिविटी टू सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द रिटर्न्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी. तो एसेट बीटा को आपने देख लिया कि दैट measures the business systematic risk and equity beta measures the sensitivity to systematic risk of the returns to the equity shareholders in a company. यानी कितना सेंसिटिव है आपका सिस्टमैटिक रिटर्न रिस्क इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्विटी होल्डर्स. यहाँ पे सिर्फ इक्विटी की बात कर रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहा है, इसलिए हम इसको इक्विटी बीटा बोलते हैं. जो एसेट बीटा था वो बिजनेस रिस्क की बात कर रहा था. इक्विटी बीटा बात करता है सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द रिटर्न्स फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. In an all equity financed company or ungated company, the only risk that is incurred is the business risk.
क्योंकि ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, उसमें फाइनेंशियल रिस्क तो होगा नहीं क्योंकि डेट का एलिमेंट तो है ही नहीं, तो फाइनेंशियल रिस्क इज नील। और उनका जो ओनली कंसर्न होता है डेट इज बिजनेस सिस्टमेट बिजनेस रिस्क, जिसको डील करता है एसेट बीटा। तो ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी में जो कंसर्न है या अनगेट कंपनी में जो कंसर्न है ओनली रिस्क का, डेट इज बिजनेस रिस्क। देयरफॉर इन एन अनगेट कंपनी द एसेट बीटा एंड द इक्विटी बीटा आर द सेम, क्योंकि एसेट बीटा हम डिस्कस कर चुके हैं, डेट डील्स विद द बिजनेस सिस्टमैटिक रिस्क, और इक्विटी बीटा डील करता है सेंसिटिविटी टू सिस्टमैटिक रिस्क फॉर द शेयर होल्डर्स। तो जो ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी है उसमें फाइनेंशियल रिस्क तो है नहीं, तो बिजनेस रिस्क डील हो रहा है सिर्फ, तो एसेट बीटा विल बी इक्वल टू द बीटा इक्विटी बीटा। तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नोट, ये आके आपके क्वेश्चंस में भी यूज हो रहा होगा कि एसेट बीटा इक्वल टू द इक्विटी बीटा, इसको हम इस तरह मेंशन करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। और ये आपको याद रखने वाली चीज है कि देयरफॉर इन एन अनगेट कंपनी द एसेट बीटा and the equity beta are the same. In a gate company, however, the equity shareholders bear not only business risk measured by the asset beta, but also the degree of financial risk. क्योंकि वैक की डिस्कशन में हम ये काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि जो दो तरह के जो रिस्क हैं, जो कि अभी भी हमने डिस्कस किए कि सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर दो तरह के रिस्क आते हैं, वन इज बिजनेस रिस्क एंड अदर इज फाइनेंशियल रिस्क। तो ऑल इक्विटी कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क क्या था, डेट का एलिमेंट हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट हो जाता है। तो ऑल इक्विटी कंपनी में एसेट बीटा इज इक्वल टू द इक्विटी बीटा। तो जो गेट कंपनी होगी उसमें क्या होगा, यहां पे हम गेट कंपनी की बात कर रहे हैं। इन अ गेट कंपनी हाउएवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स बियर नॉट ओनली बिजनेस रिस्क measured by the asset beta but also the degree of financial risk. The amount of financial risk is dependent upon the level of gearing. ये आपको याद आ गई होगी कि amount of the financial risk is dependent upon the level of gearing, क्योंकि it all depends on the debt equity ratio. But in general terms, this means that the debt risk to equity shareholders is not simply the business risk, but some extra financial risk as well. तो जो गेट कंपनी होगी वहां पे शेयर होल्डर्स के लिए दो तरह के रिस्क हैं, नंबर वन बिजनेस रिस्क एंड सेकेंडली फाइनेंशियल रिस्क। क्योंकि यहाँ पे डेट कैपिटल भी है, तो डेट की वजह से शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल रिस्क भी है और बिजनेस रिस्क भी है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि ऊपर हमने डिस्कस किया था कि इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी या अनगेट कंपनी में जो ओनली कंसर्न होता है डेट इज बिजनेस रिस्क, और इन अ गेट कंपनी द कंसर्न इज अबाउट बिजनेस रिस्क एज वेल एज सम एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिस्क। तो गेट कंपनी में इन दोनों रिस्क को कंसीडर करना होगा। देयरफॉर इन अ गेट कंपनी द इक्विटी बीटा विल बी ग्रेटर देन द एसेट बीटा, क्योंकि उनका रिस्क शेयर होल्डर्स का रिस्क इंक्रीज हो गया गेट कंपनी में ड्यू टू द फाइनेंशियल रिस्क। इस वजह से इक्विटी बीटा विल बी ग्रेटर देन द एसेट बीटा ऑफ कंपनी। तो यहां पे आपको ये चीज क्लियर होगी इक्विटी बीटा की, एसेट बीटा की, और गेट कंपनी में और अनगेट कंपनी में इक्विटी बीटा और एसेट बीटा क्या होता है। यूज ऑफ द इक्विटी बीटा। The equity beta in a gate company measures the sensitivity to market risk of the equity shareholders' return. If the equity beta is used in the CAPM, this gives the required return for the equity shareholders. तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि आप KE कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द CAPM। अगर आप इक्विटी बीटा उस फॉर्मूले में डाल दें in place of beta. This required return is the return that a company must pay, which is the cost of equity of gate company. KG से भी शो कर सकते हैं और KE से भी आप
प्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला था उसका, के ई इक्वल टू कैपम का फॉर्मूला आर एफ प्लस, यहाँ पे हमने इक्विटी बीटा डाला इंस्टेड ऑफ बीटा, और मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ। तो कैपम को यूज करते हुए आप रिटर्न टू शेयर होल्डर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द कैपम कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव मेथड टू डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ए कंपनी। तो यहाँ पे आपको कैपम के यूजेस पता चल रहे हैं कि कैपम की यूटिलिटी क्या क्या है, जो कि हमने काफी डिटेल में ऊपर डिस्कस की है कि प्राइसिंग कैलकुलेट करने के लिए भी कर सकते हैं कि आइदर द कंपनी इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, और आप रिक्वायर्ड रिटर्न टू शेयर होल्डर्स भी कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बिजनेस रिस्क चेंज होने वाला है कंपनी का तो फिर एसेट बीटा यूज होगा, और एसेट बीटा यूज करते हुए आप रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे जो कि बाद में यूज होगा इन वैक। और अगर इक्विटी बीटा भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इक्विटी बीटा अगर चेंज हो रहा है कंपनी का तो उसके लिए क्या इम्प्लीकेशंस होगी, उसके आगे भी हम देखेंगे। इसमें एक एग्जांपल है, द इक्विटी बीटा ऑफ ए कंपनी इज एस्टिमेटेड टू बी 1.2, इट मींस इट इज बीटा इक्विटी। द रिस्क फ्री रिटर्न इज 7% एंड मार्केट रिटर्न इज 15%। आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है तो हम उस फॉर्मूले में डालेंगे। फॉर्मूला आपको याद होगा कि आर एफ प्लस इक्विटी बीटा, क्योंकि हमने रिटर्न टू शेयर होल्डर कैलकुलेट करने हैं तो इक्विटी बीटा डाला और यहाँ पे इस फॉर्मूले में बाकी चीजें पुट की, तो आपके पास आ गया रिटर्न, जो रिजल्ट आया डेट इज 16.6%। नाउ वी विल डिस्कस गियरिंग एंड अनगियरिंग बीटास। एसेट बीटा और इक्विटी बीटा की यहाँ पे आपको फुल जो कैलकुलेशंस है वो समझ आएंगी। प्रोजेक्ट अप्रेजल इन अ न्यू इंडस्ट्री। It has already been noted that a company's existing WACC is only a relevant discount rate to use for the project appraisal if the project is of the same time, यानी सेम इंडस्ट्री सेम टाइम पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, उसका बिजनेस रिस्क चेंज नहीं हो रहा। ये हम WACC में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और अभी कुछ देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। If the project is a new industry, then a discount rate to reflect the business risk of that industry is required. तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट हो जाएगी, जब कंपनी अपना इंडस्ट्री चेंज कर रही है तो you have to evaluate the project in a new industry discount rate to reflect the business risk of that industry. तो जब आप एक नए प्रोजेक्ट में नई इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको एक नया डिस्काउंट रेट यूज करना होगा दैट शुड रिफ्लेक्ट द बिजनेस रिस्क ऑफ दैट इंडस्ट्री, क्योंकि जब आप नई इंडस्ट्री में गए तो बिजनेस रिस्क आपका चेंज हो गया। जब बिजनेस रिस्क चेंज हुआ तो आपको नया वैक और नया डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करना होगा जो रिफ्लेक्ट करेगा उस इंडस्ट्री के बिजनेस रिस्क को। However, care must be taken here. A company in a similar industry could be found and its beta discovered. तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपके पास ये है कि आप जो नई इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री का कोई कंपनी उठा लें जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। यानी कि एक कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में अभी ऑपरेट कर रही है एंड ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन टेलीकॉम सेक्टर। तो आप टेलीकॉम सेक्टर में जो कंपनी ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है उसका बीटा यूज कर लें, बीटा डिस्कवर कर लें, तो आपको जो टेलीकॉम सेक्टर है उसका बीटा पता चल जाएगा। वहां से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप कैलकुलेट कर लेंगे जो कि वैक में यूज हो जाएगा। However, if that company is geared, then the equity beta will contain both the business risk and finance risk elements. लेकिन अगर जो ऑलरेडी कंपनी उस सेक्टर में टेलीकॉम सेक्टर में ऑपरेट कर रही है अगर वो गियर्ड है तो उसका जो बीटा होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा बोथ द बिजनेस रिस्क एंड द फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि वो गियर्ड है, उसमें डेट और इक्विटी
दोनों का एलिमेंट शामिल है। फॉर एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ओनली द बिजनेस रिस्क एलिमेंट द एसेट बीटा इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हम दे चुके हैं कि अगर बिजनेस रिस्क हमने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एसेट बीटा इज रेलेवेंट, तो एसेट बीटा आपको कैलकुलेट करना होगा और हम यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन अभी देखेंगे कि किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस इंपॉर्टेंट चीज को आप दोबारा देख लें, फॉर एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ओनली द बिजनेस रिस्क एलिमेंट द एसेट बीटा इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आप जो नई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका बिजनेस रिस्क नया है, तो आप एक कंपैरेबल कंपनी का बीटा डिस्कवर कर लेंगे और वहां से आप एसेट बीटा ले सकते हैं। लेकिन अगर वो कंपनी जो कंपैरेबल कंपनी है वो अगर ग्रेट कंपनी है तो वहां उसका एक बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस रिस्क को भी और फाइनेंशियल रिस्क को भी, तो वो क्या बीटा कहलाता है, इक्विटी बीटा, जो कि बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को प्रेजेंट कर रहा है, डेट इज कॉल्ड इक्विटी बीटा। और उस इक्विटी बीटा को यूज करते हुए आप एसेट बीटा उस कंपैरेबल इंडस्ट्री का निकाल लेंगे, जो कि आप यूज करेंगे अपनी एवेल्युएशन के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास एमएम थ्योरी भी आ जाती है, जो कि एमएम थ्योरी के एक समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है हमने यहाँ पे कि विदाउट टैक्सेस में हम कह रहे थे वैक जी इक्वल टू वैक यू, के ई जी इज ग्रेटर देन के यू, ये हम एमएम में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसके समरी यहाँ पे मेंशन है। और विद टैक्सेस में क्या था, वैक जी इज लेस देन वैक यू, के ई जी इज ग्रेटर देन के ई यू। इफ दिस रिलेशनशिप डू नॉट होल्ड there are opportunities for arbitrage gain as market value of one company will be in disequilibrium। ये चीजें हम लिंक कर रहे हैं गेयरिंग एंड अनगेयरिंग ऑफ बीटास के साथ, क्योंकि इनका लिंक है, डायरेक्ट लिंक है विद द कैलकुलेशन ऑफ वैक। और वैक में हम कहां से कैलकुलेशन शुरू करेंगे, सबसे पहले हम बीटा कैलकुलेट करेंगे और बीटा को यूज करेंगे वैक में। और जो कंपैरेबल इंडस्ट्री है वो गेयर्ड है, और आप अगर ऑल इक्विटी फाइनेंस करना चाह रहे हैं तो वहां पे बीटा का डिफरेंस आ जाएगा। आपको एसेट बीटा उसके लिए चाहिए होगा, एसेट बीटा रिप्रेजेंट करने का ओनली बिजनेस रिस्क को, और अगर आप ऑल इक्विटी फाइनेंस करना चाह रहे हैं तो आपको एसेट बीटा चाहिए। और अगर आप ऑल इक्विटी फाइनेंस नहीं भी करना चाह रहे, आप गेयरिंग इफेक्ट डाल रहे हैं यानी डेट और इक्विटी दोनों को यूज कर रहे हैं फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, तो हो सकता है आपका डेट इक्विटी रेशियो और जो कंपैरेबल इंडस्ट्री है कंपनी है उसका डेट इक्विटी रेशियो डिफरेंट हो, तो आप उसका बीटा इक्विटी इस केस में भी यूज नहीं कर सकते। इसलिए आपको उसका पहले एसेट बीटा डिटरमिन करना होगा, उस एसेट बीटा से आप अपना इक्विटी बीटा कैलकुलेट करेंगे। तो एमएम में हमने ये देखा था कि गेट कंपनी का वैक विदाउट टैक्सेस में इक्वल था अनगेट कंपनी के वैक से, लेकिन गेट कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ अनगेट कंपनी। तो ये वो समरी थी जो कि हम एमएम थ्योरी में देख चुके थे। और एज पर कैप जो एमएम थ्योरी और कैपम का भी जो लिंक है वो आपको दिखा देते हैं कि वैक हमें एमएम में क्या डिस्कस किया था, वैक जी इक्वल टू के ई, उसका यानी प्रोपोर्शंस के मुताबिक वेट किया था, इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ डेट को वेट किया था इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर मार्केट वैल्यूज, और वहां से हमने वैक जी डिटरमिन किया था। तो एसेट बीटा एसेट रिप्रेजेंट्स बिजनेस रिस्क ओनली एंड बीटा इक्विटी रिप्रेजेंट बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क बोथ। Therefore, all companies in same industry with similar business risk should have same asset beta। तो MM को हमने लिंक किया कैपम के साथ, वैक जी आपने देख लिया गेट कंपनी का वैक एज पर MM हमने किसका कैलकुलेट किया था, और एसेट बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है सारे के सारे बिजनेस रिस्क को, और इक्विटी बीटा रिप्रेजेंट कर रही है बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क बोथ। तो हर वो कंपनी जो सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है तो उनका बिजनेस रिस्क सेम होगा। देयरफॉर बीटा एसेट ऑफ कंपनी ए वुड बी इक्वल टू बीटा एसेट ऑफ कंपनी बी
इक्वल टू बीटा एसेट ऑफ कंपनी सी। ये तमाम तीनों कंपनीज एक सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं, तो इन तमाम का एसेट बीटा सेम है, लेकिन इनका इक्विटी बीटा सेम नहीं होगा, क्योंकि बीटा कंपनी ए ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड है, कंपनी बी 40% डेट है उसके कैपिटल में, और कंपनी सी के कैपिटल में 70% डेट है। तो तीनों का कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो जब कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो तीनों का इक्विटी बीटा डिफरेंट होगा, लेकिन उनका बीटा एसेट सेम है, क्योंकि तीनों कंपनी सेम सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं। तो यहां पे इसका बीटा इक्विटी विल बी इक्वल टू एसेट बीटा, और यहां इस केस में कंपनी बी के केस में बीटा एसेट इज लेस देन द इक्विटी बीटा, एंड कंपनी सी के केस में भी एसेट बीटा इज लेस देन द इक्विटी बीटा। तो यहां पे एमएम थ्योरी और कैपम को हमने लिंक किया है। एज पर कैपम जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है वो इस तरह कैलकुलेट होता है कि आर इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इक्वल टू बीटा। और के ई किस तरह कैलकुलेट करते हैं? के ई के लिए आप चेंज करते हैं बीटा को इक्विटी बीटा में, और के डी के लिए आप कन्वर्ट करते हैं बीटा को डेट बीटा में। एंड नेवर यूज एसेट बीटा एंड डेट बीटा टू कैलकुलेट के डी और एंड वैक। द कैपम मॉडल इज ओनली फॉर इक्विटी बीटा। तो ये जो के डी है वो यहां से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, यहां से आप सिर्फ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और के ई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेवर यूज बीटा एसेट एंड बीटा डेट to calculate KD and WACC. The CAPM model is for only equity holding. Therefore, beta asset geared equal to beta asset ungeared for both and with and without taxes, and beta asset equal to beta equity. तो ऐसे केस में आपको ये पता हो जाना चाहिए कि पता चल जाना चाहिए कि जो ऐसी कंपनीज जो ये मुख्तलिफ एक सेम सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं उनका बीटा एसेट सेम होगा, और अगर कंपनी ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड है तो बीटा एसेट विल बी इक्वल टू बीटा इक्विटी। तो यहाँ पे हमने कैपम के फॉर्मूले को एमएम थ्योरी से लिंक किया था, क्योंकि वैक जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैक में गियरिंग इफेक्ट जब आएगा तो उसमें एमएम मॉडल आएगा, और जब एमएम मॉडल आएगा तो वहां पे बीटा एसेट जो के ही कैलकुलेट करने के लिए आप बीटा एसेट निकालेंगे और उसको यूज करेंगे, तो कैपम और एमएम का एप्लीकेशन यूज होगी जब गियरिंग और अनगियरिंग की बात होगी। आगे इस डिस्कशन को लेके चलते हैं कि एमएम थ्योरी और बीटास में क्या किस तरह एप्लीकेशन होगी। Modigliani and Miller applied the relationship between geared and ungeared companies to asset betas and equity betas, resulting in the following relationship. This formula means that if the equity beta of the company is known, then its asset beta can be derived in order to determine a discount rate for the particular type of project of that company. जो हमने डिस्कस किया था, कंपनी नई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने जा रही है तो उसके लिए आपको एसेट बीटा कैलकुलेट करना होगा, और एसेट बीटा आप कहाँ से निकालेंगे? कंपैरेबल कंपनी से, यानी एक जो उस कंपनी से निकालेंगे जो कि ऑलरेडी उस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है। उस सेक्टर में जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उसका एसेट बीटा लेंगे, और एसेट बीटा से फिर आप यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ बीटा इक्विटी। तो एसेट बीटा किस तरह कैलकुलेट करते हैं? एसेट बीटा इक्वल टू बीटा इक्विटी मल्टीप्लाई बाय द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेट, एंड इक्विटी और डेट की जो वैल्यूज हैं दे आर बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यूज प्लस बीटा डेट, और उसका भी प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई किया, और उसमें टैक्स के इफेक्ट को हम लेके आए हैं, यानी टैक्स शील्ड को यूज किया है, क्योंकि डेट पे जो टैक्स बेनिफिट आ रहे हैं उसको
बीटा डेट में डालेंगे, जैसा कि वैग जी में हम डालते थे, जो कि हमने एमएम थ्योरी में डिस्कस किया था, इसी तरह बीटा डेट में भी डालेंगे। वेयर बीटा एसेट इक्वल टू एसेट बीटा ऑफ ए गेट कंपनी, नोट एज दिस वुड बी द सेम एज एन एसेट बीटा ऑफ अनगेट कंपनी, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि बीटा एसेट सेम होगा अगर कंपनी सेम सेक्टर में ऑपरेट कर रही होंगी, उनका इक्विटी बीटा डिफरेंट होगा लेकिन एसेट बीटा सेम होगा। तो यहां पे वही बात लिखी हुई है, नोट दैट दिस वुड बी द सेम एज एन एसेट बीटा ऑफ एन अनगेट कंपनी इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस, एंड BE इक्वल टू इक्विटी बीटा ऑफ ए गेट कंपनी, BT डेट बीटा ऑफ ए गेट कंपनी, E market value of equity of gate company, D is the market value of debt of a gate company, and T is the corporation tax rate. और usually since debt is virtually risk free, क्योंकि debt virtually free हम assume कर लेते हैं, अगर specific आपको debt बीटा बताया गया है तो आप इस फॉर्मूले यूज कर लेंगे, अदरवाइज आप assumption भी ले सकते हैं कि debt is virtually free, so debt बीटा इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आपने डेट लिया हुआ है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, तो उसमें जो रिस्क होगा वो 0 होगा। तो अगर डेट बीटा इक्वल टू 0, देन बीटा एसेट क्या बन जाएगा आपका, बीटा इक्विटी मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइड बाय ई प्लस डी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। तो ये बीटास को यूं कैलकुलेट किया जाएगा। एसेट बीटा की कैलकुलेशन आपने देख ली, अगर आपने इक्विटी बीटा भी कैलकुलेट करना है तो वो इस फॉर्मूले में रीअरेंज करके आप इक्विटी बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अ पीएलसी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बट इज कंसीडरिंग वेंचरिंग इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहां से आपको क्लिक हो गया होगा कि कंपनी अपना बिजनेस रिस्क चेंज करने जा रही है। पहले वो ऑपरेट कर रही थी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, बट नाउ ही इज गोइंग टू ऑपरेट इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। अ पीएलसी इज अनगेट विद एन इक्विटी बीटा ऑफ 0.8। द एवरेज इक्विटी बीटा ऑफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स इज 1.4। जो मार्केट में इक्विटी बीटा, एवरेज इक्विटी बीटा ऑफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स है, दैट इज 1.4। इक्विटी बीटा ऑफ एवरेज कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स, दैट इज 1.4, एंड द एवरेज गेयरिंग रेशियो इज 1:4। तो यहां से आपको क्लिक हो गया होगा कि जो नई इंडस्ट्री में पीएलसी इन्वेस्ट करने जा रही है, उसमें इक्विटी बीटा जो मार्केट में अवेलेबल है और कंपैरेबल कंपनीज को देखते हुए कैलकुलेट किया गया है, डेट इज 1.4 इक्विटी बीटा। एंड इक्विटी बीटा रिप्रेजेंट बोथ द बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क के लिए उसने डेटा दे दिया है गियरिंग रेशियो, डेट इज 1.4। गियरिंग रेशियो उन कंपनीज का कितना है जिनका बीटा 1.4 है, 1:4, और इक्विटी बीटा है 1.4 उन कंपनीज का जो कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर में ऑपरेट कर रहे हैं। वो कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, उनका इक्विटी बीटा गिवन है, डेट इज 1.4, और उनका गियरिंग रेशियो होता है जो कि नॉर्मल कंपनीज का अवेलेबल है, डेट इज 1:4। रिस्क फ्री रिटर्न है 5%, मार्केट रिटर्न है 12%, कॉर्पोरेशन टैक्स रेट है 33%। अब यहां से सिनेरियो शुरू होता है, इफ ए पीएलसी इज टू रिमेन एन इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी, व्हाट डिस्काउंट रेट शुड इट यूज टू अप्रेज अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर प्रोजेक्ट। यानी कि अगर ए पीएलसी वांट्स टू इन्वेस्ट ऑल इट्स इक्विटी, यानी वो लोन लेके नहीं इन्वेस्ट करेगी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में, वो सारी इक्विटी फाइनेंस करेगी फॉर न्यू अप्रेजल, न्यू इन्वेस्टमेंट, दैट इज कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग। और जो कंपनीज का इक्विटी अवेलेबल है, बीटा अवेलेबल है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में के सेक्टर में, उसमें
इक्विटी बीटा मौजूद है, वो ग्रेट कंपनीज हैं। तो इक्विटी बीटा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में है 1.4 और डेट इक्विटी रेशियो है 1:4। तो यहां पे आपको क्या करना होगा प्रोसेस, आपको याद होगा कि हमने क्या डिस्कस किया था अभी, कि सबसे पहले हम इक्विटी बीटा ऑफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स का यूज करेंगे टू कैलकुलेट एसेट बीटा। तो जब हम एसेट बीटा पे आ जाएंगे तो इट रिप्रेजेंट ओनली द बिजनेस रिस्क ऑफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। तो हम एसेट बीटा पे आ जाएंगे तो एसेट बीटा कैन बी यूज्ड फॉर ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी, क्योंकि एसेट बीटा इक्वल टू बीटा इक्विटी इन केस ऑफ ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी। तो APLC ने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट करनी है थ्रू इक्विटी, नॉट थ्रू डेट। तो वो एसेट बीटा हम यूज कर सकते हैं अपनी KE निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। तो MM फॉर्मूला, यूजिंग MM फॉर्मूला फाइंड द एसेट बीटा ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो कंप्यूटर इंडस्ट्री का हमने यहाँ पे एसेट बीटा निकाला है, वही फॉर्मूला जो ऊपर आपसे शेयर किया था, उस फॉर्मूले में पुट की हैं चीजें। और यहाँ पे डेट बीटा हमने ये एज्यूम किया है 0 है, तो फिर हमने एसेट बीटा की कैलकुलेशन की है, ये हमने एज्यूम किया 0 है, तो ये पूरा एलिमेंट आपका 0 हो गया। और बीटा इक्विटी 1.4 है और इक्विटी का रेशियो आपको दिया गया है 4, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि गियरिंग रेशियो है 1:4 में। तो इसको हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यू पे ये वैल्यूएशन मौजूद है। तो इक्विटी आपकी होगी 4 और एसेट हो गया आपका, डेट हो गया 1, और जो कॉर्पोरेशन टैक्स रेट है डेट इज 33%। तो 1 माइनस 0.33 इक्वल टू 0.67। तो आपका ये यहाँ पे टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया तो आपका एसेट बीटा कैलकुलेट हुआ 1.2। Now you have the business risk of the computer industry. As APLC is ungeared, then this asset beta is the appropriate beta for use in the CAPM. क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि CAPM का जो मेन फॉर्मूला है उसमें एसेट बीटा आप यूज कर सकते हैं, और जो अगर KE निकालना हो तो आप बीटा इक्विटी डालेंगे। और अनगेड कंपनी के केस में एसेट बीटा इज इक्वल टू बीटा इक्विटी। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द डिस्काउंट रेट दैट APLC शुड यूज फॉर ए कंप्यूटर मैन्युफैक्चर प्रोजेक्ट। तो उसमें रिक्वायर्ड रिटर्न आप किस तरह निकाला, आपने कैपम का फॉर्मूला यूज किया। कैपम का फॉर्मूला आपको याद है कि RF प्लस बीटा इक्विटी मल्टीप्लाई बाय RM माइनस RF करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। और इन एन अनगेड कंपनी KE इक्वल टू WACC, क्योंकि उसमें डेट एलिमेंट है नहीं। तो जो भी आपकी अनगेड कंपनी होगी उसमें आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा डेट विल बी इक्वल टू WACC। एंड आपको एक और चीज दोबारा रिपीट करते चलें कि एसेट बीटा अनगेड कंपनी के केस में होगा इक्वल टू इक्विटी बीटा। तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इस कैलकुलेशन से आ गया 13.4%। दैट विल बी यूज्ड इन योर डिस्काउंट रेट कैलकुलेशन। और जो कंपनी की वैल्यूएशन प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन होगा, इसमें ये डिस्काउंट रेट इस तरह यूज होगा। तो हमने कैपम में ये देखा कि अगर आपका बिजनेस रिस्क चेंज हो रहा है तो आपको बीटा एसेट कैलकुलेट करना होगा। और बीटा एसेट कैलकुलेट करने के लिए आप कंपैरेबल इंडस्ट्री, कंपैरेबल कंपनीज का इक्विटी बीटा यूज कर सकते हैं। और अगर उनकी गियरिंग रेशियो डिफरेंट है तो फिर आपको क्या करना होगा, बीटा एसेट कैलकुलेट करना होगा थ्रू यूजिंग बीटा इक्विटी इन रेफरेंस विद द प्रोपोर्शन ऑफ द मार्केट, जो वेट्स हैं उनके कैपिटल के। तो फिर आपका एसेट बीटा आ जाएगा। और एसेट बीटा आप यूज कर सकते हैं अपनी कैपम में अगर अनगेड कंपनी है। लेकिन अगर कंपनी गेड है और वो इन्वेस्ट कर रही है थ्रू डेट और इक्विटी, तो एसेट बीटा कैलकुलेट करने के बाद आपको नया इक्विटी बीटा कैलकुलेट करना होगा
that represents the financial risk and the business risk of the company. और फिर उसको आप यूज करेंगे in your required rate of return determination. उसको इस चीज को भी हम एग्जांपल की फॉर्म में देख लेते हैं. Suppose that A PLC from the previous example has a gearing ratio of 1:2. पहले हमने ये कहा था कि A PLC is an ungeared company, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि वो geared company है. It still wishes to enter into the same computer manufacturing project. यानी वो बिजनेस रिस्क अपना चेंज करना चाह रही है, नई इंडस्ट्री में जाना चाह रही है. व्हाट इज द डिस्काउंट रेट दैट शुड बी यूज्ड फॉर APLC फॉर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट. तो यहां पे भी MM फॉर्मूला हम यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट एसेट बीटा. एसेट बीटा आपका आया 1.2 विच इज सेम जो हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया था 1.2. तो यहाँ पे भी आपका एसेट बीटा कंपैरेबल इंडस्ट्री को यूज करते हुए आया 1.2, क्योंकि इक्विटी बीटा आपने बताया था 1.4 है, इक्विटी आपकी 4 है. उन कंपनीज की जिनका बीटा इक्विटी 1.4 है उनके गियरिंग रेशियो 1:4 है. तो उनकी गियरिंग रेशियो यूज करते हुए आपने बीटा एसेट निकाल लिया. बीटा एसेट इज 1.2 which will be remain same in case of all companies. Either it is equity finance, either it is finance to debt and capital. तो यहां से हम इक्विटी बीटा निकालेंगे, क्योंकि इक्विटी बीटा रिप्रेजेंट करेगा फाइनेंशियल रिस्क को भी, बिजनेस रिस्क को भी, और एसेट बीटा इज ओनली रिप्रेजेंटिंग द बिजनेस रिस्क. तो क्योंकि APLC 1:2 में इन्वेस्ट करना चाहती है कि फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहती है, यानी वो अपना डेट का पोर्शन 1% रखेगी और इक्विटी का पोर्शन 2% रखेगी. तो आपको एसेट बीटा इक्विटी बीटा कैलकुलेट करना होगा. आपका बीटा एसेट को के फॉर्मूलों को अगर रीअरेंज किया जाए तो फिर रीअरेंज करके क्या बनेगा कि आप इस तरह अपना मेंशन करेंगे. एसेट बीटा 1.2, इक्विटी बीटा आपने कैलकुलेट करने हैं. बीटा डेट आपने अज्यूम किया कि 0 है, क्योंकि इंफॉर्मेशन में कुछ और ऐसा गिवन नहीं है कि बीटा डेट कैलकुलेट कर सकें या बीटा डेट गिवन हो. तो हमने ये अज्यूम किया ये 0 है, तो ये आपका पूरा पोर्शन 0 हो गया. और इक्विटी आपने रखी अपनी गियरिंग के मुताबिक. आपकी गियरिंग है 1:2 की, डेट और इक्विटी का पोर्शन है 1:2. तो इक्विटी आपने 2 रखी, डेट आपने 1 रखा, और कॉर्पोरेट टैक्स रेट वही है सेम 1 माइनस 0.33 डेट इज 0.67. तो आपका इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके इक्विटी बीटा आ गया 1.6. तो अगर आप गेट कंपनी की फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बीटा इक्विटी निकालना होगा. बीटा इक्विटी निकालना आपको सिखाया कि किससे निकालते हैं. नाउ यू कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ APLC. कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कैपम के फॉर्मूले में पुट करेंगे तमाम इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी बीटा यूज हुआ है तो आपको कैपम के फॉर्मूले में इक्विटी बीटा डालना होगा, जो कि पिछले फॉर्मूले में आपने एसेट बीटा आपका इक्वल था बीटा इक्विटी के, और यहां पे आपका बीटा एसेट इज नॉट इक्वल टू द बीटा इक्विटी. तो बीटा इक्विटी निकाला है, बीटा इक्विटी को यहां पे पुट किया है, और आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकला है डेट इज 16.2%. अभी आपको वैक निकालना है, क्योंकि जो अनगेट कंपनी में वैक वाज इक्वल टू द KE, लेकिन इन अ फॉर्म ऑफ गेट कंपनी आपको पता है अगर कंपनी गेट हो तो फिर आपका जो वैक होता है, वैक ऑफ गेट कंपनी इज लेस देन द वैक ऑफ अनगेट कंपनी. तो आपको वैक निकालना होगा, क्योंकि वैक यूज होगा फॉर डिस्काउंट और फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू या अप्रेजल के लिए आपको वैक यूज करना होगा. सो द डिस्काउंट रेट फॉर दैट APLC मस्ट यूज इज द वैक. वैक आपको किस तरह कैलकुलेट करना होगा. वैक के लिए आपको KE पता है, आपको डेट इक्विटी रेशियो पता है, आपको KD भी पता है, KD
आपने इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन एज्यूम दैट KT इज 5% रिस्क फ्री रेट, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया कि रिस्क फ्री जो बीटा ऑफ डेट है डेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिस्क फ्री है तो आप रिस्क फ्री रेट यूज कर सकते हैं फॉर KD। तो KD आपने 5% लिया और उनका वेटेज किया तो आपके पास डिस्काउंट रेट आ जाता है 11.92% वैक के फॉर्मूले में पुट करके। नाउ इन दिस केस योर डिस्काउंट रेट, रिक्वायर्ड डिस्काउंट रेट वुड बी 11.92% and this rate will be used for appraisal of a new industry project. Assumptions of the CAPM. अभी CAPM के फॉर्मूले में क्या assumptions यूज हुई हैं? The CAPM is a theoretical model that has a variety of uses for financial management. As a theory, however, there are a number of inherent assumptions. Total risk can be split between systematic and unsystematic risk, जो कि हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। Unsystematic risk can be completely diversified away and a risk-free security exists, जो कि आपको मालूम होगी और अवेलेबल होगी। बीटा वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट टाइम, क्योंकि आप कैलकुलेशन जब भी कर रहे होंगे आपके बीटा वैल्यूज सेम होंगी। इट इज अ सिंगल पीरियड मॉडल, कि हर पीरियड के लिए आपको अलहदा कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अगर फाइनेंशियल रिस्क या सिस्टमेटिक रिस्क चेंज हो रहे हैं तो फिर आपको बीटा हर साल का डिफरेंट होगा, तो सिंगल पीरियड मॉडल है। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर परफेक्ट मार्केट्स। ऑल ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर्स होल्ड वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अनसिस्टमेटिक रिस्क इज एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। And limitations of the CAPM क्या है? Many of the limitations of the CAPM stem from the assumptions upon which the theory is based. It is a single period model. It ignores unsystematic risk as it assumes this has been diversified away by the company's shareholders. How is the risk-free rate determined? How is a beta factor determined? One final limitation of CAPM is that it does not provide a realistic estimate of returns on shares. If you compare returns predicted by CAPM and returns received in the real world, they are markedly different. CAPM overstates returns on shares with high betas and understates returns on low beta shares. To overcome this, theorists have added a further measure, alpha value. This is your alpha. A share alpha value is the difference between returns actually received and returns predicted by CAPM. तो यहाँ पे हमने अब से लिमिटेशंस डिस्कस कर ली, CAPM में क्या लिमिटेशंस हैं, और अल्फा वैल्यू को भी इंट्रोड्यूस करा दिया कि अल्फा वैल्यू क्या होती है। नाउ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, क्योंकि CAPM में भी आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसको टच कर लेते हैं। इट माइट बी अर्ज्ड दैट वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द CAPM इज दैट इट इज अ सिंगल इंडेक्स मॉडल इन दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज बेस्ड solely upon the beta factor. One alternative theory which is less widely used is the arbitrage pricing theory. This is a multi-index model where the required return is affected by a variety of factors such as return on the market, industry indices and interest rate etc. अभी हमने अल्फा फैक्टर को डिस्कस किया था। अल्फा वैल्यू आपको पीछे फॉर्मूला भी बता दिया गया था कि इट इज द एक्चुअल रिटर्न माइनस CAPM रिटर्न। तो इससे आपको अल्फा वैल्यू पता चल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कंपनी आइदर इज गोइंग टू अंडर प्राइस और ओवर प्राइस्ड। वे शेयर यील्ड more or less than their expected return based on the CAPM, the difference is an abnormal return. और इसको हम अल्फा फैक्टर से शो करते हैं, और अल्फा फैक्टर फॉर ए सिक्योरिटी इज सिंपली द बैलेंसिंग फिगर इन द फॉलोइंग फॉर्मूला। अल्फा फैक्टर के साथ हम कैलकुलेट करेंगे कि ये पूरा का पूरा आपके सामने क्या है, बी CAPM का फॉर्मूला, और इसमें ऐड कर दिया अल्फा फैक्टर को। इफ अल्फा फैक्टर आपको पता चल गया किस तरह कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल रिटर्न माइनस CAPM रिटर्न। इफ अल्फा इक्वल टू नेगेटिव, एक्चुअल मार्केट वैल्यू विल बी लेस देन द CAPM मार्केट वैल्यू। अगर CAPM का रेट यूज करके आप मार्केट वैल्यू निकालें
तो वो डिफरेंट होगी, और एक्चुअल को रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके निकालें तो मार्केट वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अल्फा अगर नेगेटिव निकलता है तो इट मीन्स actual market value will be greater than the CAPM market value, and it means company is overvalued, क्योंकि CAPM defines the equilibrium rate of defines the required rate of return, and it is the equilibrium rate of return, and actual return is less than the CAPM return, and it means the investor should not invest or divest in that situation if the alpha is negative. If alpha is positive, actual market value is less than the CAPM market value, and it means the company is undervalued, and the actual return is greater than the CAPM return, and the investor should invest or hold. तो ये एक डिसीजन मॉडल है और डिसीजन वे है by using the alpha value. Alpha values are temporary values, as arbitrage gain opportunities or speculation will over a long period of time cause securities to offer the same return as that offered by a market portfolio become in line with the market. For project with similar investment requirement and expected returns, then the project with lowest beta should be selected, क्योंकि उसमें रिस्क आपका कम होगा। तो यहाँ पे हमने अल्फा वैल्यू की बेस पे जो डिसीजन कर सकते हैं इन्वेस्टर वो देख लिया, और अल्फा वैल्यू की डेफिनेशन भी देख ली है। तो इसके साथ हम आज का लेक्चर यहाँ पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अल्फा वैल्यू की कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, और कैपम की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देख लेंगे, और उसके बाद डिस्काउंट रेट पे भी एक दफ़ा बात कर लेंगे कि जो रिस्क एडजस्टेड वैक जो यूज़ होगा फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोजेक्ट वो किस तरह कैलकुलेट होते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।